Okay, so hello everyone, welcome to Q Physics Academy. Today I will cover some important problems on Gauss's law, right? Which are specially asked in IIT exam exams, and this lecture series is mainly for those students who are in BSc Physics, and also those students will uh, planning to participate in IIT JAM, JEST and TFR exams also. Okay, so let's start our videos. This is lecture number 9, and we discuss problems of Gauss's law. Okay, we are discuss here problems of. Okay, so first questions. This questions asked in IIT JAM 2025. Okay, the question is, a charge Q is placed at the center of a base of a squared pyramid. Okay, and the net outward electric flux across each of the slanted faces each. Option A Q by epsilon naught, option B Q by 2 epsilon naught, option C Q by 4 epsilon naught, and option D Q by 8 epsilon naught. And where epsilon naught is the free space permittivity. Okay, so this is a very important questions. That kind of questions many time asked in the previous exams also, right? Mainly I mention like chest exams, TFL exams, also CSR NET and GATE. So this type of questions is very important to. So here you first focus on how to handle, how to solve that kind of problems actually. Okay, how to solve that kind of problems, that is very important. Okay, right, let's start. So here first of all you focus here, the charge is placed at the center of base of a squared pyramid. Okay, center of the base of square pyramid. Okay, so that's why the charge is not actually enclosed here. You just focus here, you just focused, this is the base, right? This is the base of the pyramid. This is the base of the pyramid, and charge is located at here. But here the given charge is not actually enclosed. This given charge is not actually enclosed here. So we already know when charge is enclosed, then we apply the Gauss's law. Then we apply Gauss's law. मतलब जब चार्ज enclosed होगा तभी हम लोग गॉसेस लॉ का जो फॉर्मूला होता है उस गॉसेस लॉ का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट? सो इसके लिए पहले आपको ये जो चार्ज है, इस चार्ज को क्या करना होगा, इसको एनक्लोज करना होगा. तो इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए इस पिरामिड का, जो पिरामिड ऑलरेडी गिवन है, इस पिरामिड के बेस में और एक पिरामिड ड्रॉ करना होगा, इमेजिन करना होगा. तो लेट अस इमेजिन a pyramid, right? Let us imagine a pyramid. So तो इसके बाद क्या होगा, जो चार्ज है वो चार्ज एक्चुअली टोटली एनक्लोज्ड हो जाएगा. तो इसका मतलब अभी जो चार्ज, सुनाओ, चार्ज Q is enclosed, right? Charge Q is enclosed. Now charge Q is enclosed. So now when flux emit, or when flux passing through
each faces, we know flux passing through each face। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो फ्लक्स है, फ्लक्स एक्चुअली जो पिरामिड का हर एक स्लैंट फेसेस है ना, हर एक स्लैंट फेसेस है, जो फेस है, हर एक फेस से फ्लक्स पास करने वाला है। तो यहाँ पे आराम से ऑब्जर्व करिए, जो ऊपर वाला जो पिरामिड है उसमें 4 स्लैंट फेसेस है, ठीक है। सो देयर है 4 slant face for upper pyramid, right, and there have another 4 slant face for imaginary pyramid, right? Right, for imaginary pyramid। So it's mean there have total 4 plus 4 8 slant faces, right? So now total flux passing through the system, so now flux passing through the system is phi equals to q upon epsilon naught। इसका मतलब जो टोटल 8 फेस के थ्रू इतना फ्लक्स पासिस होने वाले हैं। सो फ्लक्स इट मीन्स flux passing through 8 slant faces, 8 slant faces each q epsilon। So flux passing through 1 slant faces each q by 8 epsilon। सो दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो इसमें एक पिरामिड था, पहले एक पिरामिड था, उस पिरामिड का बेस का सेंटर में एक चार्ज था, राइट। सो पहले सो फ्लक्स, व्हेन यू कैलकुलेट फ्लक्स, देन फर्स्ट ऑफ ऑल you need to consider the charge is a closed, enclosed or not। If the charge is not enclosed, then please enclose the charge, right? Now you can calculate the flux passing through this enclosed surface। So for that case, here the charge enclosed by 8 slant faces। So okay, so now the flux passing through 8 slant faces is q by epsilon naught, right? So but in our questions they ask the flux passing through each of the slant faces, for each of the slant faces, that's why we calculate flux passing through 1 slant faces, so that is equals to q by 8 epsilon naught। So okay, so for these questions, option D is the correct answer। Okay, for these questions option D is the correct answer, right? Okay, next we step forward for question number 2, that is also asked in IIT JAM 2025। It's a one kind of MSQ questions, okay, it is a one kind of MSQ questions। So what asked in the questions, a spherical ball
having a uniform charge distribution, uniformly distributed charge q and radius r, and pulsates, it means up and down, pulsate with frequency or oscillate, pulsates with frequency omega, such that the radius change by प्लस माइनस 10%। इसका मतलब जो है, जो स्पेरिकल बॉल है वो कंप्रेस्ड हो रहा है, पल्सेट, इसका मतलब कंप्रेस्ड हो रहा है और स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच्ड और कंप्रेस, ठीक है, यही हो रहा है एक्चुअली, राइट। तो ये वाला जो बॉल है ये एक्चुअली एक्सपांड कर रहा है, इसका मतलब एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट यही हो रहा है। इसको तुम स्ट्रेच मत बोलो, इसको तुम ये बोल दो एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, यही हो रहा है, पल्सेट हो रहा है विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंड देन when it expand, then its radius increase by 10%, when it contracts, then its radius decrease by plus 10%, minus 10%, as shown in the figure. Okay, as shown in the figure. Which of the following options are correct? The net outward electric flux across a spherical surface of radius r is greater than 1.5 r, pulsate with frequency omega. The net outward flux across the spherical surface of radius r 1, मतलब जब जो स्पेरिकल बॉल है जब एक्सपांड होगा तब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करने वाले वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑल्सो पल्सेट विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा। इज इट करेक्ट स्टेटमेंट? एक चीज़ आराम से ऑब्जर्व करो, जो गॉसेस लॉ होता है, मतलब द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, राइट, depends only the total enclosed charge, not on its distributions inside, right। मतलब जो एक क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करने वाले वो ओनली डिपेंड्स ऑन टोटल enclosed चार्ज, not on its distribution, not on its distributions, since here the total charge, uniformly distributed charge q is constant here, right, total charge is uniformly distributed, so it's mean charge is constant. So here as charge is constant, enclosed charge is constant, so flux passing through the outside is also constant, so it's not pulsate with a frequency omega, right। So net outward flux, एक बॉल है, उस बॉल का तुम साइज इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तब जब फ्लक्स इंक्रीज होगा वो कभी भी पल्सेट नहीं करने वाले, मतलब वो फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है ना, चार्ज ऑलरेडी कांस्टेंट है, कॉन्सेप्ट को समझो, राइट। सो यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, जो गॉसेस लॉ है, वो गॉसेस लॉ ओनली टोटल एनक्लोज्ड चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट ऑन इट्स डिस्ट्रीब्यूशंस, right, but in that case the total charge q is constant, so when net flux जो होगा वो mainly actually constant होगा, it's a basic constant, so the net outward electric flux across a physical surface of radius r 1.5 r pulsate with frequency omega, it's a wrong statement. Why it's not wrong statements? So let us take a statement, Gauss's law. Let us take a statement of Gauss's law. The net electric flux, through a closed surface, okay, through a closed surface depends only on the total charge, okay,
total charge enclosed, total charge enclosed, not on its distributions. It's a very good statement. Not on its distributions. Okay, so it means phi of E is equals to Q enclosed upon epsilon naught. So here if Q enclosed equals to constant, then phi of E also constant. Okay, phi of E also constant. So let us take one by one point. Here option A, for option A, right, for options A, the net outward flux across a spherical surface of radius r is greater than 1.5 bar, pulsed with frequency omega. No, flux depends on only total charge. So since Q is constant, the flux is constant, so not time dependent. So it means if charge is constant, then phi of E is not time dependent. Okay, so option A is the incorrect. So option A is incorrect, right? Okay, let us take option B. The net outward electric flux across a spherical surface of radius r 2r is q by epsilon naught. Yes, it's true, right? Net outward electric flux. So यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉल था जिसका रेडियस कैपिटल आर था और इसमें टोटल चार्ज क्यू था. अब तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है एक स्फेरिकल सरफेस जिसका रेडियस 2r के बराबर है, जिसका रेडियस 2r के बराबर है. सो राइट, सो चार्ज इज कांस्टेंट, सो नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi of E is equals to Q enclosed upon epsilon naught. So Q equals to Q enclosed naught upon epsilon naught. So that is R equals to 2R. Flux at R equals to 2R. Right. So options B is the correct. Options B correct. Options B here correct. That is false. Okay, now let us take option C. The potential fluctuates with frequency omega at r equals to 2r. The potential fluctuates with frequency omega at r equals to 2r. Just focus on the statement. While total flux is constant, right? As we know, R equals to 2R, total flux is constant, right? That is phi of E equals to Q upon epsilon naught. Right. So when charge distributions varies with time, as you know, statement charge distribution varies with time, affecting the electric field and potential at point outside the sphere, right? So the potential at R equals to 2R varies with time at frequency omega. You just focus, you just figure, you just focus
q and the radius r with frequency omega such that radius changes by plus minus 10% as shown in the figure below. Which of the following statement is correct? So here at r equals to 2 our total flux is constant. It's okay. But here potential is constant or not? That is the questions, right? One point you remember, when charge distribution, here charge distributions is definitely changes or varies with time due to pulsations. So here take a point here due to pulsation चार्ज. बट तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा बस पिछले दो पॉइंट के लिए तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ था. बट गॉसेस लॉ इट नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, इट डिपेंड्स ऑन नेट टोटल चार्ज, राइट. हियर ड्यू टू pulsation charge distributions, one point you remember, charge distributions H varies with time, right? So when charge distributions varies with time, it's affecting the electric field. Obviously, it's affecting the electric field and potential, right? At point outside the sphere of r equals to capital R, right? At charge when it expand r equals to capital R, then its charge distribution is change. When it contracts, then its charge distribution is change. But total charge is not change. Total is constant. You just focus. You just concentrate my statement, right? Total charge is constant. Gauss's law depends on total enclosed charge, not charge distributions. But electric field and potentials depends on charge distributions. If charge distribution change, electric field will change, potential will change. But here charge distributions pulsating with frequency omega, so electric field and potential also pulsating with frequency omega outside the sphere. Okay, so the potential at r equals to tr varies with time at frequency omega. Okay, so option C is the correct. Option C of course correct, option B correct, option C correct. Let us check option D. The electric field inside the sphere will not be time dependent. How? Will not be time dependent. It's a wrong statement. Already we discussed in option C. When a option D already we discussed, this is the actual sphere of radius r, total charge q. But when it's expand, right? When it expand, then again charge distribution change. This is the expansion. Then electric fields equals to varies with time,
then potential obviously varies with time, but flux is constant, because electric field and potential depend on charge distributions. Flux depends on total charge. Okay. Another case, this is the actual sphere of radius r, but if it is contrast, contrast, and in that case also phi e constant, but v of e equals to change with time, e is also change with time, because in that case also distribution change, but total charge remain constant. So you just keep in mind, when charge distribution change, then electric field and potential both are change. But when we calculate flux, that is, it's remain constant. No, it's not constant. For inside case it is not constant, sorry. Then charge distribution, total charge, available charge is not constant, because then again total charge will change, right? Total charge will change, then it's not actually it's not equals to q by epsilon naught. Constant means it's not equals to q by epsilon naught, right? It's not equals to q by epsilon naught for the inside case, but it is q by epsilon naught for outside case. Just pick up the point. Okay, so we have a sphere and total charge q, but when the spherical ball is expand, then its total charge remain fixed, so total flux is constant, that is q by epsilon naught, but just distribution is vary with time, that's why electric field and potential change. It's a one key point. Another key point, when the ball is contrast, then its charge distribution to obviously change, that's why potential and electric field also change with time, that is they are pulsating with frequency omega, but the flux is not equals to q by epsilon naught, but it is constant. It's not exactly constant, it's varies with some r, with it's varies with it's all obviously it's change with time. Yes. Okay, it's not it's change with time, because it depends on r, something r, but here r is change with time. But say charge r mean the point where you calculate the r is it means in that case, inside case, phi of e is exactly directly proportional to some r. R is the point where you r is the radius of this Gaussian surface. Okay, so it's because it's r is when r change, then distributions obviously change. Okay, so here r change, distribution is obviously change, so it's that's why. So like electric field and potential, when r change, then distribution change, when distribution change, it's with value with time in the similar case. But in the outside of the original sphere, flux is constant, electric field and potential change, because the point because the point main point you can pick up, distribution is change, right? And at that point r is change with time, means distribution change with time, that's the point. So here one point to remember, inside point both are change with time, all flux, potential, electric field change with time, but for outside point only electric field and potential change with time, flux is remain constant. Okay, I think you clear the point. Okay.
because it's changed with R of t. That's the point. In both case also, in both case it's the same case, right? Okay. Okay, let's experiment another questions. Okay, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले, राइट? क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल चार्ज कंटेन विद इन ए क्यूब, सी इन द फिगर इन व्हिच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, ठीक है, व्हेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. वी एक्चुअली कैलकुलेट द टोटल चार्ज कंटेंट विद इन द क्यूब. एक्चुअली एक चीज़ आराम से ऑब्जर्व करो भाई, ठीक है, आप लोग एक चीज़ आराम से ऑब्जर्व करो. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, क्या गिवन है? के 4x स्क्वायर आई कैप प्लस 3y जे कैप, ठीक है. यूनिट क्यूब है. तो तुमको क्या करना है? टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता है, टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा एक्चुअली बेसिक प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को पहले समझना होगा. मैंने जब थ्योरी एक्सप्लेन किया था ना, तब मैंने बोला था जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा उससे आपको टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना है. मैंने क्या बोला था? जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है गॉसेस लॉ का, उसको यूज करो. उसको यूज करके, मतलब ये जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है, ठीक है, इसको यूज करके तुम यहाँ से इस रो का वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, ठीक है. जब तुम रो का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, देन यहाँ से तुम टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस फार्मूला, राइट. बट वही फॉलो करना है इधर. यहाँ पे जो वॉल्यूम एलिमेंट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए यूज करना होगा. वो क्या यूज करना है भाई? वो यूज तो ये करना है ना. तो यहाँ पे x का लिमिट तो क्या है? x का लिमिट भी तुम्हारे पास 0 से 1 है, y का लिमिट भी तो 0 से 1 है, और z का लिमिट भी तो 0 से 1 है ना. तो जस्ट तुम्हारा जो काम होगा इसमें रो कैलकुलेट कर लेना है. बस देखना है रो का वैल्यू x और रो y किसके ऊपर एक्चुअली डिपेंड करता है. ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है. यहाँ पे इंट्रीगेशन थोड़ा सा ट्रिकी होता है. तो इस तरह के इंट्रीगेशन शायद तुम लोग कभी एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुमको, जो लोग थर्ड ईयर में है उसको पता है, बट जो लोग कभी मतलब फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहा है, वेक्टर कैलकुलस पढ़ के आया है, तो उस स्टूडेंट के लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होगा. इसलिए मैंने थोड़ा इसको डिटेल्स में डिस्कस करूँगा, ठीक है. डोंट वरी भाई, आप लोग आराम से देखो क्या क्या मैं सॉल्यूशंस कर रहा हूँ, आराम से सीखो, ठीक है. इसमें कोई प्रॉब्लम, मतलब इतना डरने का कोई बात नहीं. हाँ, कैसे सॉल्व करना है, नहीं, आप थ्योरी को आराम से पढ़ो. जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आराम से पढ़ो, आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा, ठीक है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलरेडी, ठीक है. तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या गिवन है? के इंटू 4x स्क्वायर आई के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है. ईजी हो गया बहुत, राइट. तुमको चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना है, राइट. सो वी नो divergence of E equals to rho upon epsilon naught. So rho equals to epsilon naught divergence of E. बस यही है. जो यहाँ पे K को बाहर ले लो, डाइवर्जेंस ऑफ E 4x स्क्वायर आई कैप 3y जी कैप. जस्ट सिंपल डेरिवेटिव है भाई. क्या होगा? फर्स्ट पहला 8x, सेकेंड वाला में 3 रहने वाला है. ओके, सो ये ऑलरेडी आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया ना. ये क्या मिल गया? ये तुमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, ठीक है. तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है तो आपके पास तो एक अनुभव, आपके पास ब्रह्मास्त्र मिल गया. आप कुछ भी कर सकते हो इससे, राइट. जो कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो भाई तुम इससे. टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लो, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, बाद में जाके वर्क डन कैलकुलेट कर लो, कुछ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी कैलकुलेट कर लो
बस हो जाएगा, राइट। तो आपके पास अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है ना, बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको मिल गया, तो आपको जो पूछा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। क्या कैलकुलेशन करना है? टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। टोटल चार्ज, इसका जो फॉर्मूला होता है रो डी भी होता है, ओके, रो डी भी होता है। सो एप्सिलॉन नॉट के, इसका x का लिमिट 0 से लेके 1, y का लिमिट 0 से लेके 1, z का लिमिट 0 से लेके 1, और यहाँ पे 8x प्लस 3 dv फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम dx dy dz। बस यही है। बस इसको फर्स्ट आपको इंटीग्रेट ओवर x करना है, ठीक है। इंटीग्रेट ओवर x करो, देन बाद में सोचेंगे कैसे इसको लिखना है। ये पहले देखो, इसको पहले आराम से समझना है। इंटीग्रेशंस जेड, इंटीग्रेशंस y 0 to 1 ऐसे करो, x 0 to 1 8x प्लस 3 इंटू डी एक्स, इसको बाद में लिखो टी वाई टी जेड। इस तरह के इंटीग्रेशन तुमको जस्ट एक बार सीखना चाहिए, ठीक है। एप्सिलॉन 0 के, तो जेड 0 से लेके 1, वाई 0 से लेके 1, इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिल रहा है? 8x² बाई 2, 3x 0 से लेके 1 डी वाई डी जेड, ओके। तो यहाँ पे 7 मिल रहा है, तो एप्सिलॉन 0 के जेड 0 से लेके 1, वाई 0 से लेके 1, 7 डी वाई डी जेड। अभी तो एक कांस्टेंट ही मिल गया, अभी तो बहुत और भी इजी हो गया ना। तो बाहर ले लो एप्सिलॉन नॉट के जेड 0 से लेके 1 डी जेड, वाई 0 से लेके 1 डी वाई, तो ये तो 1 ही आएगा। तो 7 एप्सिलॉन 0 के आंसर मिलने वाला है। सो दैट इज नथिंग बट क्यू, ओके। 7 एप्सिलॉन 0 के टोटल चार्ज आपको यही मिलने वाला है। ये बहुत इजी था, जस्ट इंटीग्रेशंस को आराम से सॉल्व करने के बाद बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम में क्या होता है ना, इस इंटीग्रेशंस करने के बाद भी कुछ एक्स टर्म वाई टर्म रह जाता है। तो मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, मतलब इजी कैसे हो गया, मतलब जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत सिंपल फॉर्म में आ गया। बाद में देखना जब तुम क्वेश्चन देखोगे और कुछ टेस्ट का क्वेश्चन, तो इसमें थोड़ा बहुत ट्रिकी होता है, मतलब इसमें एक्स वाई मिक्स होता है, तो उस इंटीग्रेशन को अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए तुम लोगों को, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। बाद में जब इतना सारा प्रॉब्लम लेंगे ना, तो सारे प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे तो एक अच्छा सा आइडिया हो जाएगा उसमें कैसे सॉल्व करना है। तो आई थिंक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया कैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, उससे कैसे टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। ऑलरेडी हम लोग इसके ऊपर जब थ्योरी पढ़ाए थे, हम लोग कुछ प्रॉब्लम लिए थे, उस टाइम शायद तुम लोग सॉल्व किए थे, तो उसको फिर से एक बार तुम्हारे पास रिकैप हो गया, तो और भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट। कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, तभी जाके एग्ज़ाम क्रैक होगा भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 IIT JAM 2018। देखिए ये वाला क्वेश्चन ना, इस तरह का क्वेश्चन आपको अच्छे से सीखना चाहिए। मैंने क्यों बोल रहा हूँ, देखो इसमें एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट को ये लोग टच किया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको स्टार मार्क दे के रखना चाहिए आपके कॉपी में ना। इस तरह का क्वेश्चन को आप स्टार मार्क दे के रखिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस के टाइम इस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होना चाहिए हर बार, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है, ठीक है। अब तुम बोलोगे क्या क्या सिखाने वाले, सॉल्व करेंगे तभी तो पता लगेगा क्या क्या सिखाने वाले हैं। देखो क्या बोला एक्चुअली, गिवन स्फेरिकल सिमेट्री चार्ज डेंसिटी, तुम्हारे पास एक चार्ज डेंसिटी गिवन है KR² R ग्रेटर देन R, ओके।
मतलब जो स्फीयर है, ठीक है, जो स्फीयर है उसका रेडियस अगर r होता है, मतलब इनसाइड तक, बाहर तक नहीं है, r इक्वल्स टू r तक नहीं है, उसके बस पीछे, उससे थोड़ा कम, बस यही बोल रहे हैं। K being constant, the electric field for r less than r each taken the total charge as a q। ओह देखो, एक ऑप्शंस आराम से देखो, यहाँ पे k कांस्टेंट बोला है, ठीक है, k को कांस्टेंट बोला है, बट तुम हर एक ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो, एक भी ऑप्शन में ना k का कोई मेंशन ही नहीं है भाई। इस क्वेश्चन को आराम से देखो, k तो कांस्टेंट है, तुम कुछ भी इंटीग्रेशन कर लो, डेरिवेटिव कर लो, तो बाहर ही रहेगा, वो तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए, है ना। बट यहाँ पे देखो k का कोई बात ही नहीं, मेंशन ही नहीं किया। इसका मतलब ये लोग k का वैल्यू पहले कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन तुमको मिलेगा उसमें k की जगह में इसको सब्स्टिट्यूट करो, पहले ये बोल रहा है। तो पहले तुम इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैलकुलेट कर लो r लेस देन r के लिए, उसमें देखोगे k का एक फॉर्म रहने वाला है, तो उस k का वैल्यू तुमको सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो इस k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए तुमको क्या करना होगा, रो से अगर k का वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसका मतलब देखो q टोटल चार्ज कैलकुलेट करो, वहाँ से तुम k का वैल्यू कैलकुलेट करो इन टर्म्स ऑफ q के फॉर्म में। बस यही फंडा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो क्या करना है, तो गिवन चार्ज डेंसिटी तो तुम्हारे पास है कि r² गिवन है और AR लेस देन r के लिए गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए वी यूज गॉसेस लॉ, राइट, we use Gauss's law, that is nothing but closed surface integrations E dot ds q enclosed upon epsilon नॉट। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। पहले तुमको q enclosed कैलकुलेट करना होगा, तो अगर तुम q enclosed कैलकुलेट करोगे तो इसके लिए तो फार्मूला रो डी भी होता है। आप देखना है रो का r, मतलब स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है और रो ओनली r के ऊपर डिपेंड है, तो क्या होगा, एक के r² होगा और ये क्या होगा 4πr² dr होगा, और यहाँ पे r का लिमिट 0 से लेकर r तक ही होने वाला है ना, 0 से लेकर r तक ही होगा, क्योंकि इनसाइड पॉइंट, इनसाइड के लिए। तो यहाँ से तो 4π के बाहर आ गया 4π के बाहर आ गया 0 से लेके r टू द पावर 4 dr, वेरी सिंपल है। सो 4π के r टू द पावर 5/5, सो फाइनली तुमको मिल रहा है 4π के r टू द पावर 5/5, दैट इज नथिंग बट q एनक्लोज्ड, ठीक है, मतलब तुम इसको q मान लो, q इक्वल्स टू तुमको मिल रहा है 4π के r टू द पावर 5/5। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सप्रेशन तुमको मिलेगा। अभी इस q तो मिल गया, ठीक है, q तो मिल गया, ये तुम्हारा एनक्लोज, मतलब इसको तुम इक्वेशन नंबर 2 मान लो, मतलब ये जो चार्ज मिला है ना, दिस इज द टोटल चार्ज, पहले आराम से समझो, दिस इज द टोटल चार्ज enclosed within Gaussian surface। मतलब जिसका रेंज r लेस देन r तक है, ये है। तो अभी तुम्हारे पास E डॉट ds इक्वल्स टू तुमको मिल रहा है 4π के r टू द पावर 5/5 एप्सिलॉन नॉट। मैंने तो ऑलरेडी थ्योरी पढ़ाने के टाइम बोला था, इस तरह का इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद तुमको मिलेगा 4πr² इंटू ई, दैट इज इक्वल्स टू 4π के r टू द पावर 5/4π एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से 4π को कैंसिल करो,
आर स्क्वायर से कैंसिल करने के बाद ई का तुमको एक्सप्रेशन मिलेगा ई आर क्यूब अपॉन 5/√। ये एक्चुअली आंसर होना चाहिए था, ये एक्चुअली आंसर होना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या है, देखो तुम हर एक ऑप्शंस को एक देखो आराम से। यहाँ पे कैपिटल आर और क्यू, इस दोनों के बारे में बात करें, हम लोग का आंसर मिल रहा है के फॉर्म में और स्मॉल आर के फॉर्म में। बट यहाँ पे देखो कैपिटल आर है और क्यू है, तो इसके लिए तुमको टोटल जो स्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, स्फीयर था, टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है पहले, ठीक है। गॉसियन सरफेस के लिए नहीं, टोटल स्फीयर के लिए तुमको टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। ओवल एक्सप्रेशन अभी के फॉर्म में आएगा, वहाँ से के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैलकुलेट करो और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। इसको आराम से सीखो, इसलिए मैं बोल रहा था। तो ये वाला प्रॉब्लम तुमको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम तुमको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं और सीखोगे भी तुम, ठीक है। दोनों इसको सीखोगे भी। सुनाओ, टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू रो dv। रो तुमको के आर स्क्वायर मिल रहा है और dv हम लोग को पहले से ही पता है 4πr² dr, क्योंकि रो ओनली डिपेंड्स ऑन r, तब तुम dv को ऐसे लिख सकते हो। अगर रो थीटा के फॉर्म में डिपेंड्स है, फाई के फॉर्म में डिपेंड है, तब तुम dv को फॉर्मूला लिख सकते हैं r dr r स्क्वायर, r dr r साइन थीटा d थीटा d फाई। मतलब ये ऑलरेडी हम लोग मेंशन किया। बट यहाँ पे जो r का लिमिट होगा ना, ये 0 से लेके कैपिटल, हम लोग होल स्फीयर के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 0 से लेके r, सॉरी 4πk को तुम बाहर ले लो, 0 से लेके r⁵ dr। तो ये सॉल्व करने के बाद तुमको क्या मिल रहा है, r⁵/5। यहाँ से तुम k का वैल्यू कैलकुलेट करो, तो k का वैल्यू क्या मिलेगा, 5q/4πr⁵। इस k का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। इस k का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में तुम सब्स्टिट्यूट कर लो। तो अगर इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग सब्स्टिट्यूट करोगे तो e का वैल्यू क्या आएगा, 5q/4πr⁵ इंटू r⁵/5ε0। तो 5 एक दूसरे से कैंसिल कर रहा है, तो मिल रहा है q/4πε0 r⁵। सो एग्जैक्टली तुमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल रहा है अभी, q कैपिटल R3, ओके, कैपिटल R3 4πε0 कैपिटल r⁵। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट r<r, ठीक है। तो तुम ऑप्शंस को देखो, इसमें ऑप्शंस ए करेक्ट हो रहा है एक्चुअली, राइट। ऑप्शंस ए तुम्हारे पास इसमें से मैच हो रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चंस बहुत सारे एग्ज़ाम में तुम देखोगे। जेस्ट मान लो, TIFR का एग्ज़ाम मान लो, CSR नेट, कुछ भी एग्ज़ाम ले लो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पस, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। मतलब ये बहुत कुछ सिखाते हैं तुमको। तो इसमें हर एक स्टूडेंट को यहाँ तक तो सबको पता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, बस ऑप्शन में थोड़ा सा लोग चेंज कर दिया, बस यही प्रॉब्लम हो जाता है। स्टूडेंट लोग इसके बाद सोचते क्या करें, कुछ नहीं करना है भाई, तुमको जस्ट टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लो होल स्फीयर के लिए, और वहाँ से जो कांस्टेंट का वैल्यू जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, बस यही मेथड है। इसको तुम आराम से सीख लोगे तो इस तरह का प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर पाओगे आगे जाके, ठीक है। आई थिंक तुम इसको अच्छे से सीखो भाई, पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम लोग थ्योरी तो पढ़ रहे हैं, आराम से सीखेंगे, कुछ डिटेल्स अगर सीखेंगे तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं आगे जाके, ठीक है। तो आगे जाके तुमको सीखना है, तभी जाके तुम कुछ सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं सीख के जाओगे तो प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में जाके। तो पहले मैंने देखो कैसे मैंने सॉल्व कर रहा हूँ, उससे कुछ सीखो। ऐसे
रट्टा मत मारो ऐसे ऐसे करना है, नहीं नहीं, इस तरह का प्रॉब्लम ही आएगा, ऐसा नहीं। देखो मैंने तुमको बोल दिया यहाँ पे रो का वैल्यू के आर स्क्वायर है, मैंने डी वी का वैल्यू हार बाई 4 पाई आर स्क्वायर दे रहा है। मैंने एक बात भी बोला है, ठीक है, रो का वैल्यू के आर स्क्वायर ओनली डिपेंड्स ऑन आर, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर है। अगर रो का वैल्यू तुम्हारे पास ऐसा है, ठीक है, मान लो आर साइन थीटा है, तब तुम क्या करोगे, तब तुम डी वी का वैल्यू ए नहीं लिख सकते, तुम ए नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रो ना थीटा के ऊपर डिपेंड है। तब तुमको क्या लिखना है, डी वी का वैल्यू आर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये लिखना है। इसी को इसी का हम लोग सॉल्व करके ना यही मिल रहा है। मैंने बहुत बार बोला है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचता है, क्योंकि तुम डी बी के जगह में रो तुम्हारे पास ओनली आर के फंक्शन में गिवन है और तुम ये लिख रहे हो, वही तो बात में आएगा। एक एक सेकंड का टाइम का इम्पोर्टेंस है, ये प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। इससे कोई हम लोग रॉकेट साइंस तो नहीं कर रहा है, ये बहुत सिंपल है। बस पहले तुमको इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस आना चाहिए, आदत में आना चाहिए, ठीक है। मतलब तुम्हारे माइंड में ये पहले ही क्लिक कर, रो गिवन है, क्या गिवन है, आर के फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में, फाई के फॉर्म में, ये तुम्हारे माइंड में होना चाहिए जब भी तुम इस तरह का प्रॉब्लम डील करोगे, ठीक है ना। हाँ, यही बात आराम से सीखो, ये छोटा छोटा पॉइंट को सीखते चलो, आगे जाके बहुत काम आने वाला है, आगे बहुत कुछ करोगे, ठीक है, आगे बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम लोग। आई थिंक ये वाला प्रॉब्लम तुमको अच्छा लगा, कैसे हम लोग सॉल्व किए, ठीक है। बस यही तक है। जैम में इतना सारा गॉसेस लॉ से इतना सारा क्वेश्चन तो दिया नहीं है, मतलब जितना सारा गॉसेस लॉ से जैम में क्वेश्चन आया था वो हम लोग इधर पे डिस्कस किया है ना, इधर पे हम लोग डिस्कस किए। अगर तुम TFR का क्वेश्चन लोगे जैसे तब तो कुछ क्वेश्चन मिलेगा। मैंने जस्ट गॉसेस लॉ क्योंकि वो थ्योरी हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो देखने वाले हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन रिलेटेड। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या देखने वाले, देखो पोटेंशियल देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखेंगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर जस्ट हम लोग थ्योरी डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसके ऊपर थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका जैम का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ओके। तो मैं बीच बीच में क्या करूँगा, उसके बाद साथ साथ मैं देखता हूँ इस हाँ, गॉसेस लॉ से इस वीडियो से पहले गॉसेस लॉ से कुछ और प्रॉब्लम मिलेगा तो मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। आज ही देखते हैं कुछ प्रॉब्लम जस्ट का है कि नहीं, राइट। आईटी जैम का तो सॉल्व हो गया, थोड़ा बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा मुझे लग रहा है, 54 मिनट्स का हुआ है, ठीक है, 54 मिनट्स का हुआ है। देखते हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जेस्ट और TIFR को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस पोटेंशियल को देखेंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर देखते हैं, बात करते हैं, ओके। उसके ऊपर थोड़ा बहुत बात करेंगे, जेस्ट और TIFR में गॉसेस लॉ से क्या क्या क्वेश्चन, इसी तक तुम्हारा नोट्स अच्छे से बनेगा, है ना। नोट को बनाना भी ज़रूरत है क्योंकि बाद में रिवीजन करना होगा। और अब और एक बात, तुम लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लो क्योंकि वहाँ पे सारे अपडेट मैं देते रहता हूँ, ठीक है। वहाँ पे सारे अपडेट देते रहता हूँ, तो उधर तुम देखोगे कुछ भी अपडेट आ रहा है मैं फेसबुक पेज में अपडेट करते रहता हूँ। कुछ ये जो वीडियोस है इसका PDF भी मैं उधर शेयर कर दूँगा, ठीक है। तुमको अगर उस PDF को चाहिए, PDF को भी तुम लोग उधर से ले सकते हो। और मैं ये भी सोच रहा हूँ एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है, क्यू फिजिक्स एकेडमी का, जिस यूट्यूब फैमिली के लिए, जिसमें तुमको सारे जो वीडियोस है ये सब मिल जाए, ठीक है। ये सब वीडियो एकदम से अचानक से मिल जाए, तुम लोगों को सारी वीडियोस मिल जाए और सारे PDF मिल जाए, कुछ भी नोट्स होगा उसका PDF मिल जाए। तो जिस चीज़ को ज्वाइन करना है ना, अब एक बार इसी नंबर पे मुझे एक बार जस्ट एक मैसेज डाल लो, जो सर मुझे भी ज्वाइन करा लो ग्रुप में, मैं तुमको ज्वाइन करा लूँगा,
ठीक है। एक मैसेज डाल दो, इस तरह मुझे एक बार ज्वाइन करा लो इस ग्रुप में, मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं ज्वाइन करा लूँगा। इसमें थोड़ा बहुत डिस्कस भी होगा, तुम्हारा प्रॉब्लम भी डाल सकते हो, कुछ डाउट होगा तो इसमें भी डाल सकते हो, तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा जेस्ट और TIFR के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इस पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी इसके ऊपर लेक्चर्स देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सीखते रहिए, पढ़ते रहो भाई आराम से। नेक्स्ट तुम्हारी नेक्स्ट एग्ज़ाम, नेक्स्ट जो TIFR नेक्स्ट ईयर में जो 2026 में जो एग्ज़ाम होगा तो वो क्रैक करना है। इन दिमाग में मान के चलो भाई, अच्छे IIT में जाना है भाई, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, उससे मोटिवेशन होना चाहिए, तभी जाकर कुछ कर पाओगे। ऐसे करोगे नहीं, मैं तो पढ़ रहा हूँ देख लेंगे, नहीं, ऐसे पैसे से नहीं ऐसे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है। तुमको एकदम गोल सेट करना है, बस मुझे इस जगह में जाना है, इसके लिए ये इतना करना है भाई, ये करो, ठीक है, ये करो तभी जगह होगा। हम लोग एज तो शायद तुम लोगों से 21, किसी का 20 हो गया, तो आप लोग समझदार हो गया, तो इतना बोलने का ज़रूरत भी नहीं है, तुम लोग खुद ही जान लो। फिजिक्स का स्टूडेंट हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो तुम लोग, राइट? तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, सॉल्व करो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, ओके, थैंक यू।